biology. Now we are going to the part number 10 of the biological classification. Okay, let's see. Now the flagella, the bacterial flagella. What's the main function of the flagella? What is the flagella? Flagella is the fine thread-like protoplasmic appendages which extend through the cell wall and the slime layer. Means that the flagella are extending structures of the cell wall are emerge outside in the helping of the locomotion and the movement. And next, the help the swim in the liquid medium. When bacteria in the liquid medium that locomote through the this flagellum, this flagellum structures. The flagella is made up of the protein is known as the flagellin protein, composed of the single thin fibril. Means this flagella is composed of the thin fibril. That's arrangement of 9 plus 2. Means 9 is the peripheral region, 9 is the peripheral region, and 2 is the central region. So known as the 9 plus 2. Means the microtubules. That's the structures and the arrangement of the microtubules in a thin fibril of the eukaryotic cell. Made up of which protein is the important for the flagella? The flagella is made up of the flagellin protein. Pili and fimibri. That's a major difference in both. Flagella are the importance in the locomotion and movement, but pili in fimibri are not involving involving in the locomotion and movement. That's involving in the reproduction. It's involving in the reproduction. Like the made up of the pilin protein. Pili and fimibri is the made up of the pilin protein. Fimibri presents the outside of the surrounding of the bacteria. That size, that structure. Fimibri. Or we can say that the pili. 0.5 to 2 mu m in the length and 3 to 5 mu in the diameter. Diameter कितना 3 to 5. अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 0.5 to the 0.5 to 2 mu m in the length. Take part in attachment like the holding to the solid surface. ये और भी काम करता है कि कोई भी सरफेस है उस सरफेस के ऊपर अगर मान ले इसको अटैच होना है तो ये भी आपके एक तरह से होल्डिंग करने का काम करेगा. ओके. सम सेक्स पिलाई या एफिलाई या कॉन्जुगेशन पिलाई एक्ट एज द कॉन्जुगेशन कैनाल थ्रू द विच डीएनए ऑफ द वन सेल पॉसेज इनटू द अनदर सेल. मींस अपन अगर बात करें एक बैक्टीरियल सेल ये है, दूसरी बैक्टीरियल सेल ये है. ये पिलाई की अगर बात करें तो पिलाई क्या करेगा, ये पिलाई तो इसका भी पिलाई ये बोथ पिलाई आर इंटरलिंक्ड एंड फॉर्मिंग a bridge, forming a conjugation tube in which the genetic material pass on through this tube and performing a reproduction. That's a sexual reproduction, not a true sexual reproduction. Because of that, not a formation of the sex cell. Means can that the gametes not form your gametes and fertilization, but take place here. Transfer of the genetic material through the help of the conjugation canal or a conjugation tube with the help of pili and fimibri. Clear? Next, cytoplasma. Cytoplasma is the aqueous fluid and semi-fluid or ground substance. That's so we can say that matrix and consists of the many more like that the carbohydrate,
soluble proteins, enzymes, coenzymes, vitamins, lipids, minerals, salts, and nucleic acids are inside the cytoplasm in a colloidal state. Very, very, very important. All full whole cytoplasm in form of the colloidal state. Granular due to the presence of the large number of ribosomes. लार्ज अगर अपन कहें कि साइटोप्लाज्म ऐसे ग्रेन्युलर फॉर्म्स के अंदर है, दैट्स साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ द ग्रेन्युलोज, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम की वजह से साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर कंडीशंस के अंदर रहता है और एक स्ट्रक्चर बनता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम मीन्स जब एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे एमआरएनए के ऊपर जब बहुत सारे आपके राइबोसोम्स आपके इंटरलिंक हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन, इसी स्ट्रक्चर्स को, इसी अरेंजमेंट को अपन नाम देंगे पॉलीराइबोसोम। लेटर स्टडी इन द क्लास 12th। ओके, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में देखेंगे पॉलीराइबोसोम्स क्या है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंस। जितने भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आपके गोल्जी बॉडी, जीआर, जितने भी आपके मेम्ब्रेन्स, आपके ऑर्गेनेल्स से सेल ऑर्गेनेल्स, वो सबके सब एब्सेंस होते हैं। न्यूक्लियाइड मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने से कंडीशन कौन सी होगी, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, न्यूक्लियर बॉडी बनेगी। इस न्यूक्लियर बॉडी का नाम दे दिया न्यूक्लियाइड। नोन एज द जीनोपोर, दैट्स मेक द न्यूक्लियस, या कहेंगे insufficient nucleus. Nuclear material DNA which is the double helical, कैसा होता है ये, ऐसे डबल हेलिकल डीएनए बट सर्कुलर, इन फॉर्म ऑफ द सर्कुलर। अगर अपन बात करिए प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, सो अगर यूकैरियोट्स की बात कर दे तो यूकैरियोट्स की तो यही डबल कंडीशन होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में। पढ़ा है अपन ने अच्छे से, एक एक चीज को क्लियर किया है। सराउंडेड बाय सम टाइपिकल प्रोटीन। अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स पे बात करें तो ये पूरा डीएनए प्रोडक्ट है, वो किससे आपके एसोसिएटेड रहता है, किससे कंबाइंड रहता है, तो अपन ने एक नाम दिया था हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस इन द न्यूक्लियस दैट फॉर्मिंग द न्यूक्लियोइड और डीएनए और क्रोमोसोम। बट in prokaryotes have the polyamine, have the protein type polyamine, but not presence of the histone protein. Histone protein presence only the eukaryote, not to the prokaryotes. Prokaryotes having the protein is the polyamine in the nucleoid, the chromosomal part. Histone is the basic protein, are all together absence in the bacteria. कहा ना, हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंस रहता है। ओके, नेक्स्ट प्लाज्मिड। व्हाट इज अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो न्यूक्लियस का डीएनए है उसके अलावा कोई डीएनए पार्ट अगर प्रेजेंस है सेल के अंदर तो नाम देंगे एक्स्ट्रा प्लाज्मिड। Plasmid term was the Lederberg in 1952. Who gave name Lederberg in 1952? Many bacteria have the extra chromosomal genetic element या DNA are called the plasmid. बिल्कुल सिंपल। सपोज ये सेल है अपने पास, इस सेल के पास खुद का डीएनए है, इसके अलावा भी कोई डीएनए प्रेजेंस है, इसको कहेंगे न्यूक्लियर डीएनए। अगर अपने पास में एक्स्ट्रा अगर न्यूक्लियर डीएनए है तो उसका नाम दे देंगे प्लाज्मिड। स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, कैसा रहता है ये प्लाज्मिड, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में। सम प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटिंग इनटू द बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम्स, मींस अगर ये प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल के डीएनए से लिंक हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम देंगे एपिसोम। क्या नाम देंगे, एपिसोम्स। There are three types of plasmid, like first F factor means the fertility factor, नाम दे दिया, responsible for the transfer of genetic material। ये ऐसा फैक्टर है, fertility factor means the plasmid, it's types of the plasmid
ये प्लाज्मिड किसके रिस्पॉन्सिबल है, तो कहेंगे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। अपने को इस पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है इन बायोटेक्नोलॉजी इन क्लास 12 में बायोटेक के अंदर इसको पढ़ेंगे अच्छे से। RH फैक्टर मीन्स रेसिस्टेंस फैक्टर, क्या प्रोवाइड करवाता है, रेसिस्टिविटी अगेंस्ट द ड्रग्स, ड्रग्स के अगेंस्ट ये आपके रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट, कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर, इट्स प्रोवाइड द कॉल्सिसिन विच किल द अदर बैक्टीरिया, क्या प्रोवाइड करवाता है, कॉल्सिसिन इज लाइक द एंटीबॉडी सच एंटीबायोटिक्स और kill other bacteria. That's the three types of the plasmids. And what is the plasmid, अपन ने अच्छे से को क्लियर किया। आगे बढ़े, एमसीक्यूज को सॉल्व करना, बिना एमसीक्यूज किए कुछ भी नहीं हो सकता। एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो ये सब पढ़ना आपके सार्थक है, अदरवाइज वेस्टफुल। Now next, the bacterial ribosome. Bacterial ribosome serve. What is the bacterial main function of the bacterial ribosome? Main function of the protein synthesis और कंपनी का नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए mRNA के ऊपर जो पहले आपके रहेगा, जो आपकी फैक्ट्री होगी, वो है राइबोसोम। बिना राइबोसोम के कभी भी आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। 12th में डिटेल में पढ़ना है, आप फिलहाल यहाँ तक ही ध्यान रखें। राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंस होता है, तो अपन ने कहा 2.5 MDA का मेगा डाल्टन ना। और फिर बात करें विद द RNA अकाउंटिंग फॉर द 2 to 3 ऑफ द मास। 2 सब यूनिट कौन कौन सी, 30s और आपके 50s लार्ज यूनिट, और ऐसे रहता है ये स्मॉल, ये लार्ज यूनिट। स्मॉल है वो 30s की, लार्ज है वो 50s की रहती है। और ये है ना, ये दोनों के दोनों ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, ऐसे आके एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर अरेंजमेंट होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। देखेंगे 12th के अंदर अपने अच्छे से। ओके क्लियर, एमसीक्यू सॉल्व करना, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके बाय, टेक केयर।